در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کر تو اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری بھائیوں کی، ساری بہنوں کی سبھی مشکلات پریشانیوں کو ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میرا اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ قرآن پاک کا وہ حکم ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ جا بجا احکام دیے ہیں، کبھی نماز کے بارے میں، کبھی زکوٰۃ کے بارے میں، اور بہت سارے شرعی احکامات ہمیں ملے ہیں، لیکن پورے قرآن پاک میں اللہ کریم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو کہ یہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن پاک میں یہ صرف ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے اور ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر، اپنے محبوب پر رحمت بھیجتا ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ وہ اپنے رحمتیں نازل فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات علماء اکرام نے فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اور آپ کو ایک بڑے کمال کا اعزاز دیا گیا اللہ کی طرف سے جو اور کسی بھی نبی کو نہیں ملا، وہ یہ کہ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آپ کو سجدہ کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ کو، اللہ کے سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور سبحان اللہ یہ شرف صرف آپ کو عطا کیا گیا۔ اب یہاں پر علماء اکرام کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو واقعی یہ مقام ملا کہ سارے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، مگر یہ سجدہ صرف ایک ہی بار کیا گیا۔ ایک اور تفسیر میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سجدہ جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا، یہ انہیں سجدہ کروایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سجدہ صرف ایک بار ہوا۔ اور دیکھیے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ صرف فرشتے ہی نہیں، اللہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہا ہے، اور ایک بار نہیں۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پاک بھیجا اے ایمان والو اب تم درود بھیجو، نہیں۔ جو میرے عزیز بھائی بہنیں عربی گرامر جانتے ہیں، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے یصلون، اس کا معنی یہ بنتا ہے لگاتار مسلسل ہونے والا کام۔ تو سبحان اللہ، اللہ اور اس کے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود پاک بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود پاک کی کوئی حاجت نہیں۔ جس نبی کی
दरबार में जिस नबी पर करोड़ों अरबों खरबों बल्कि खरबों भी कम है, फरिश्ते कितने हैं वो दुरूद पाक भेज रहे हैं, और फरिश्ते इतने हैं कि उनकी हम तादाद ही गिन नहीं सकते। खुद कुरान पाक में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। और फिर फरमाया फरिश्ते अल्लाह का सबसे बड़ा लश्कर है। इसके बहुत सारे मायने बनते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के बहुत सारे लश्कर हैं। और यहाँ पर एक और बात कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में, सारे सैयारों में, सारी जगहों पर अल्लाह के यहाँ जो सबसे बड़ी मखलूक है तादाद में, तो वो फरिश्ते हैं। इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बयान करता हूं ताकि आपका और मेरा ईमान ताजा हो कि मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आन हर लम्हा कितने दुरूद भेजे जा रहे हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला का सबसे बड़ा लश्कर है। और इसके बारे में एक हदीस मुबारक भी है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान चरचराया। चरचराने का मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर कोई स्टेज लगा हुआ हो तो अचानक उस पर बहुत सारे अफराद जमा हो जाएं, तो ऐसे लगेगा जैसे वो टूट जाएगा, चरचराने की आवाजें आती हैं। यानी ऐसी जगह या ऐसी चीज जिस पर वजन उसकी इस्तेदाद से ज्यादा हो, इसको चरचराना कहते हैं। तो फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान चरचराया और उसको चरचराने का हक है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मफहूम कुछ यूं है, कदम भर भी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई फरिश्ता रुकू सजदे या क़याम में मौजूद ना हो। और एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि इस पूरी कायनात में 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं, कि हर जगह जगह पर फरिश्तों ने अपना सर सजदे में रखा हुआ है। तो देखिए कि इतना फरिश्ता है कि हर जगह पर, हर चप्पे चप्पे पर अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक इबादत कर रही है। इतने फरिश्ते हैं। अब मैं आपको इनकी कैलकुलेशन बयान करता हूं। कहा यह जाता है कि इंसान पूरे जन्नात का 10वां हिस्सा है, यानी इस कायनात में। तो आपने कुछ रवायत भी सुनी होगी कि एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो 9 जन्नात के बच्चे पैदा होते हैं। तो इंसान जन्नात का 10वां हिस्सा है। और दुनिया में तकरीबन जो एक अंदाजा है 7 से 8 अरब के करीब हमारी आबादी है। चले हम 8 अरब के नजदीक लगा लेते हैं। तो ये देखिए कि जन्नात कितने होंगे, ये हम मोटा मोटा हिसाब करते हैं। जन्नात का हम 10वां हिस्सा है तो जन्नात 80 अरब के करीब। और वो फरमाते हैं कि इन दोनों को मिला लें, इंसान और जन्नात खुशकी के जानवरों का 10वां हिस्सा है। कि इस जमीन पर जितने भी जानवर हैं उनका 10वां हिस्सा इंसान और जन्नात बनते हैं। तो जमीन पर तकरीबन कितने जानवर हो गए? 800 अरब। और उसके बाद इनको मिला लें तो ये सारे परिंदों का 10वां हिस्सा है। तो देखिए कि परिंदे अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मखलूक है। तो परिंदे कितने हो गए? 800 से 8000 अरब। तो इन सब को मिला लिया जाए तो ये सारे समुद्री जानवरों का 10वां हिस्सा है। तो देखिए कि दुनिया में तकरीबन 65 से 70 तक पानी ही पानी है। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितने बड़े बड़े और गहरे समुद्र पैदा किए हैं। और एक तहकीक के मुताबिक अगर पूरी दुनिया में खाने पीने का सामान खत्म हो जाए, यानी फल फ्रूट सब्जी जानवर सारा कुछ खत्म हो जाए, तो अकेला समुंदर पूरी दुनिया को 100 साल तक खुराक दे सकता है। अल्लाह ताला ने इतनी मखलूक समुद्र में रखी हुई है। तो अब ये देखिए कि समुद्री जानवर कितने हो गए? 80,000 अरब। तो इन सबको अगर मिला लिया जाए तो ये जमीन पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा बनते हैं।
तो कितने हो गए? 8 लाख अरब। तो सब मिला लो तो ये पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा बनता है। और अगर ये सभी मिला लिए जाएं तो ये दूसरे आसमान वालों के 10वें हिस्से के बराबर है। तो अगर ये सारे मिला लिए जाएं तो ये तीसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा बनते हैं। और इनको मिलाओ तो ये चौथे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। और इसी तरह गिनती करते 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 7वां आसमान तक पहुंच जाए। और फिर उसके बाद ये सारे जो फरिश्ते हैं ये कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में मामूली सी जमात बनती है। इन सब फरिश्तों को मिला लिया जाए तो ये अर्श के एक पर्दे के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। और सिर्फ अर्श के पर्दों की तादाद 6 लाख है। तो यहाँ पर मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों सारे कैलकुलेटर, सारे कंप्यूटर, सारे पैरामीटर सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन फरिश्तों की तादाद हम गिन नहीं सकते। अब यह देखिए कि ये सारे फरिश्तों की क्या ड्यूटी है, यानी उनका क्या काम है। तो देखिए मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि इनको क्या काम दिया गया है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कैसा हमारे आका का मर्तबा और उनकी शान है। अरबों खरबों उससे आगे गिनती जो है वो तो खत्म है, लेकिन कितने फरिश्ते हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेज रहे हैं। ये है मेरे और आपके आका की शान। बल्कि एक जगह पर तो अहले दिल लिखते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला क़यामत जो कायम करेगा वो आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने के लिए अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा। और उस दिन आपको और मुझे अल्लाह ताला अपनी रहमत से और अपने हबीब के सदके से हमें माफ करेगा और जन्नत में जगह अता करेगा। तो यहाँ पर सारे भाई सारे बहनें हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ कर ले कि अल्लाह ताला हमें माफ करे और अपनी रहमत से और अपने हबीब के तुफैल उनकी शफात अता फरमाए और हमें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो देखिए जब इतने ज्यादा फरिश्ते, वो फरिश्ते जो मासूम हैं और गुनाहों से पाक है और वो मुसलसल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, भेज रहे हैं, तो हमें क्यों कहा गया दुरूद पाक पढ़ने का? तो यहाँ पर ये सवाल बनता है। तो इसमें सच्ची बात यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दुरूद पाक की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ हमें चांस दिया जा रहा है, यानी ये दुरूद पाक पढ़ना हमारे अपने लिए बेहतरीन है कि हम अगर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दुरूद पाक हम पर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल करता है और हमारे सभी काम सीधे हो जाएंगे। असल में दुरूद पाक ये है कि हमारे सभी बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए हमें दुरूद पाक मिला है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तवीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ा करें ताकि अल्लाह ताला की रहमतें और उसकी बरकतें और उसके फरिश्तों का हमें साथ मिल जाए। अल्लाह पाक मुझे भी दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी दुरूद पाक पढ़ना नसीब फरमाए। तो चलते हैं मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों अपने आज के वजीफे अमल की तरफ। आज का हमारा वजीफा जो अमल है ये दुरूद मुकद्दस का है और इसके बारे में हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स ये दुरूद पढ़े और अपने ऊपर दम करे वो तमाम बलाओं, आफतों और बीमारियों से महफूज रहेगा और हमेशा अल्लाह की पनाह में रहेगा। इस दुरूद पाक पढ़ने के फजाइल बहुत ज्यादा हैं और इस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से जादू जन्नात से भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से निजात मिलेगी और सब हाजात भी जरूर पूरी होंगी इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि जिस जगह पर दुरूद पाक पढ़ा जाता हो तो वहां पर अल्लाह की रहमतें होती हैं और जहां पर मेरे अल्लाह करीम की रहमतें हों वहां पर कोई मुश्किल कोई परेशानी बाकी नहीं रहती। इस दुरूद पाक को बेऔलाद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला की रहमत से औलाद पाएगा
अगर कोई गरीब पड़ेगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको अमीर कर देगा, और अगर कोई हाजत रवा पड़ेगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसकी हाजत को पूरा करेंगे। अलगर्ज दुरूद पाक हर मुश्किल को, हर बीमारियों को ले जाता है, खत्म कर देता है, और दुरूद पाक अल्लाह ताला की रहमत को नाज़िल करता है। जो भाई बहन इस दुरूद पाक को पढ़ना चाहे तो वो क्या करे, 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़े, और ज्यादा बेहतर यह है कि इस दुरूद पाक को यानी दुरूद मुकद्दस को बाज़ नमाज तहज्जुद पढ़े, वरना आम हालात में आप बाद नमाज इशा इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 बार रोजाना पढ़िए तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी वो अल्लाह ताला जरूर पूरी करेगा। अगर कोई गरीब होगा तो अल्लाह ताला उसे गनी कर देगा, अगर कोई बेऔलाद होगा तो अल्लाह ताला उसे औलाद वाला कर देगा। अगर कोई किसी ऐसी मुश्किल परेशानी का शिकार है या उसकी हाजत जो बहुत बड़ी है और उसकी वो हाजत पूरा होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, तो फिर इस दुरूद मुकद्दस को बाद नमाज तहज्जुद 7 बार पढ़े और उसके बाद सजदा रेज होकर अल्लाह ताला से दुआ करे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी वो दुआ जरूर कबूल होगी। तो कोशिश करें कि इसको रोजाना पढ़ें, लगातार पढ़ते रहें जब तक कि आपका वो काम हो नहीं जाता। और फिर दुरूद पाक तो इतनी बड़ी नेमत है हमारे लिए कि हम इससे अल्लाह ताला की रहमतें हासिल कर सकते हैं। और दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को भी मिटाता है, हाजात को भी पूरी करता है, और अल्लाह ताला की रहमतें भी नाज़िल करता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सभी भाइयों सभी बहनों की सभी मुश्किलात को अपनी रहमत से अपने हबीब के सदके से हम सबको निजात दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो कोई दुरूद पाक पढ़ेगा सुनेगा उसका अजर उसका सवाब आपको और मुझे हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।